राइट आप सभी का स्वागत है। You're watching Legally Speaking and this is Himadri Bansal. Today we are going to cover definitions under Industrial Relation Code और मैं कोशिश करूँगी कि बाईपार्टाइट फोरम भी इसी में कर दूँ, पर टाइम पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टाइम का हो गया तो पार्ट 2 बनाएंगे ज़रूर, ठीक है, बनाएंगे ज़रूर, कवर ज़रूर करेंगे। ऑल राइट, ओके, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गो अबाउट दिस इज़ कि हम सबसे पहले बेयर एक्ट के हिसाब से देखेंगे कि बेयर एक्ट उन सेक्शंस को क्या बताती है और उन सेक्शंस के बारे में क्या बोलती है, एंड देन वी आर गोइंग टू गो एंड टेक अ लुक एट द नोट्स दैट आई मेड, ओके, एंड उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, मज़ा आने वाला है। आज का सेक्शन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑल माई लॉ स्कूल बडीज हु आर ट्राइंग टू जस्ट फिगर इट आउट। तुम्हारा भाई बैठा है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। और एंड फॉर people who just want to learn and are trying to prepare for NET and JRF are also welcome here. Let's start. Okay, so the सबसे पहली चीज we're going to cover is appropriate government. Section 2 clause B. Let's take a read at section 2 clause B. Appropriate government for the purposes of this section means in relation to any industrial establishment or undertaking carried on by or under the authority of the central government or concerning any such controlled industry as may be specified in this behalf by the central government or the establishment of railways including metro railways, mines, oil fields, major ports, air transport service, telecommunication, banking, insurance company or a corporation or other authority established by central act or a central public sector undertaking, subsidiary companies established by a central act, subsidiary companies set up by the principal undertaking or autonomous bodies owned or controlled by the central government, including establishments of the contractors for the purposes of such establishment, corporation or other authorities, public sector, or any company in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the central government, as the case may be, the central government. For the purposes of this clause, the central government shall continue to be the appropriate government for the central public sector undertaking, even if the holdings of the central government reduce to less than 50% equity in that public sector undertaking after the commencement of this code. In relation to any other industrial establishment, including state public sector undertaking, subsidiary companies set up by the principal undertaking and the autonomous body owned or controlled by central government, the state government, provided that in case of a dispute between a contractor and the contract labor employed through the contractor in any industrial establishment where such dispute first arose, the appropriate government shall be the central government or the state government, as the case may be, which has the control over such industrial establishment. Okay. इतना मुश्किल है नहीं जितना लग रहा है। Let's just give it a read and you guys shall understand. देखो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इंडस्ट्रियल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाते क्यों हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का फंक्शन होता है भाई कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, रूल मेकिंग, इन्फोर्समेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अगर कोई ऐसी अथॉरिटेटिव बॉडी होगी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वो किस तरीके से चलेगी, उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा, और उसके अंदर कल को कोई डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाता है तो उसका समझौता कैसे किया जाएगा, उसका डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा, उस सब का फैसला अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। ओके, नाउ 3 कंडीशंस हमें याद रखनी है इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के केस में। सबसे पहला, कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या फिर अंडरटेकिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैरी की जा रही है या फिर उसकी कंट्रोल उसके अथॉरिटी में है, पहला पॉइंट। दूसरा, रेलवेज, मेट्रो, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर अथॉरिटीज जो सेंट्रल एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है, तो कंट्रोल होना चाहिए, एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल एक्ट होना चाहिए। एंड तीसरा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसमें इन तीनों केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। ऐसी कोई भी, इसके अलावा ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जैसे कि स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सब्सिडरी कंपनीज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रिंसिपल अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इन केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपना स्टेट गवर्नमेंट।
अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच में इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगी जो ओन और कंट्रोल करता है उस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को। 2020 वाली में चेंज आया है कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। ये जो प्रोवाइजो था ये पहले एडेड नहीं था, ये अभी एडेड किया गया है। Right. Now we're going to study about employer. Employer is provided under section 2 clause M. I realized एक बहुत ही weird सी आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, वो मैंने चेंज कर दिया। Okay guys, bear with me, I'm new to this as well. Okay, moving to the Bear Act, section 2 clause M, which reads as employer means a person who employs, whether directly or through any person, or in his behalf or on behalf of any person, one or more employee or worker in his establishment, or where the establishment is carried on by any department of the central government or the state government, the authority specified by the head of department in this behalf, or where no authority is specified, the head of the department, and in relation to any establishment carried on by a local authority, the chief executive of that authority, and includes in relation to an establishment which is a factory, the occupier of the factory. Second, moving forward, in relation to any other establishment, the person or the authority which has the ultimate control over the affairs of the establishment, and where the said affairs are entrusted to a manager or managing director. Third, contractor. Fourth, legal representative. Let's just make this simple. It's scientifically proven कि अगर हम किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर में डाल देते हैं ना तो ह्यूमन ब्रेन उसको ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको एग्जाम से पहले देख रहे हो तो भैया आपके तो दिमाग में एकदम बैठ जाने वाला है। लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर। एम्प्लॉयर सेक्शन 2 क्लॉज है, कोई भी ऐसा इंसान जो एम्प्लॉय करता है या तो खुद से या फिर किसी और इंसान के थ्रू अ पर्सन, खुद के लिए या फिर किसी और इंसान के लिए, एक से ज्यादा एम्प्लॉइज। वेरी सिंपल। सेकंड पॉइंट, वो एस्टैब्लिशमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी ऑन कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट कैरी ऑन कर सकती है। अगर इन दोनों से कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो ज्यादातर ऐसा होता है कि अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर कौन होगा ये एचओडी स्पेसिफाई कर देता है। और यूजुअली जब नहीं स्पेसिफाई करता तब एचओडी खुद एम्प्लॉयर की तरह देखा जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जो लोकल अथॉरिटी कैरी ऑन कर रही है तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि फैक्ट्री का ऑक्यूपायर या मैनेजर, कोई और एस्टैब्लिशमेंट का मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर कहलाएगा। मूविंग फॉरवर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज एम्प्लॉई। एम्प्लॉई हम किसको बोलते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज एल में प्रोवाइडेड है। लेट्स गिव दिस अ रीड। सेक्शन 2 क्लॉज एल, just ऊपर, एम्प्लॉई मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को हमने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि अप्रेंटिस के बारे में एक अलग एक्ट दिया गया है। अच्छा, अप्रेंटिस होते कौन है? कौन होते हैं अप्रेंटिस? अप्रेंटिस कोई भी ऐसा इंसान होता है जो किसी स्किल्ड लेबर के अंदर कोई भी स्किल्ड सीखने की कोशिश कर रहा है, या तो ट्रेड हो सकता है या कॉमर्स हो सकता है या कोई भी तरीके की स्किल हो सकती है जो स्किल्ड लेबर के अंदर सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अप्रेंटिस बोला जाता है। अप्रेंटिस को हमने इसमें से एक्सक्लूड कर रखा है। ओके, मूविंग ऑन, एम्प्लॉयड बाय एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express and implied, and also includes a person declared to be an employee of the appropriate government but does not include any member of the armed forces. Armed forces को भी exclude कर दिया गया। Let's simplify this just a bit. First point, कोई ऐसा इंसान आर्म्ड फोर्सेस और अप्रेंटिस से अलग जो कि एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, ऑपरेशनल। इसको याद करने का एक ही तरीका है, मतलब एक तरीका तो नहीं है, और भी तरीके हैं, पर एक प्रमुख तरीका ये है कि आप इसका एक निमोनिक बना लें, ठीक है। उसको हायर या रिवॉर्ड के लिए रखा जाता है। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड कुछ भी हो सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉय वो माना जा सकता है। सेकंड, मूविंग ऑन, इज वर्कर। भाई वर्कर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से देख लो, पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। इसका एक केस लॉ भी हम देखेंगे। क्या क्या केस लॉ? एक ऐसी वीडियो जिसमें बेयर एक्ट की रीडिंग, नोट्स और केस लॉ तीनों है,
I think I should just give this a like. Just kidding. अगर पसंद आता है तो भी लाइक करना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे भाई को कंटेंट तो बनेगा. Worker. Let's give this a read. Section 2ZR. Worker. Oh, looks like we have already read this. इसको erase कर देते हैं, कोई बात नहीं. Section 2ZR. Worker means any person except an apprentice. इधर भी apprentices को हटा दिया गया है. Employed in an industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward. Whether the terms of employment be express or employed and include any working journalist. Working journalist को include किया गया है. And moving on, and sale promotion employees as defined in clause D. For the purposes of any proceeding under this code in relation to an industrial dispute includes any person who has been dismissed, discharged or retrenched or otherwise terminated in connection with or as a consequence of that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include a person who is subject to the Air Force, Army Act or Navy Act, person employed in police service or an officer of a prison, employed in mainly managerial or administrative capacity, a person who is in supervisory capacity drawing wages exceeding 18K plus per month as an amount notified by the central government from time to time. आओ जी आओ. वर्कर. वर्कर कोई भी ऐसा इंसान जो एक इंडस्ट्री में काम करता है, जो एक स्पेसिफिक टाइप का काम करता है, परफॉर्म्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क. वो काम कैसा हो सकता है? मैनुअल, स्किल, टेक्निकल, ऑपरेशन, क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी. ध्यान दीजिए, मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है. ठीक है, नहीं किया गया है. मूविंग ऑन. एम्प्लॉयमेंट हायर के लिए भी हो सकती है, रिवॉर्ड के लिए भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है. जर्नलिस्ट को हमने इंक्लूड किया है और सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है. सेकेंड, कोई भी ऐसा इंसान जो डिसमिस कर दिया गया है, डिस्चार्ज, रिट्रेंच कर दिया गया है, उसको हम फिर भी वर्कर मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ द लीगल डिस्प्यूट रिगार्डिंग देयर टर्मिनेशन. उनकी टर्मिनेशन से किसी भी चीज का अगर लेना देना है तो उसको हम वर्कर मानेंगे. ओके, इसको इस डेफिनेशन से किसको एक्सक्लूड किया गया है? सबसे पहला, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जितने भी लोग एम्प्लॉयड है उनको एक्सक्लूड किया गया है. पुलिस एंड प्रिजन सर्विसेज में जितने भी लोग, मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जितने भी लोग हैं, एंड सुपरवाइजरी स्टाफ जिनकी वेजेस 18K से प्लस है, उनको निकाला गया है, उनको इस एम्बिट से बाहर रखा गया है. केसेस. ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस आरबीआई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक प्रिंसिपल बना दिया जाए जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सके कि एक वर्कर को और एक सुपरवाइजर और मैनेजर के बीच में फर्क कैसे किया जाए. कोर्ट ने बोला कि अगर कुछ ऐसे सुपरवाइजरी रोल में है जहाँ पे उसके पावर है किसी भी इंसान को हायर और फायर करने की या फिर उसको लीव देने की थ्रू इट्स सबऑर्डिनेट, तो उसको एक नॉन वर्कमैन माना जाएगा. Now moving on to the most, and I cannot emphasize it more for the students who are in law school. भाइयों please सुन लो, this is important. Define industry and trace its revolution. Define industry and trace its evolution using judicial pronouncement. ये सवाल पूछा जाता है 10 नंबर के लिए भी, 12.5 नंबर के लिए भी. ठीक है, कितने भी नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है, 5 नंबर के लिए भी. तो ध्यान से सुन लो, ऐसा कुछ नहीं बचेगा इसके बाद जो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा. फर्स्ट अवेयर एक्ट रीडिंग. एंड ऑल्सो माफी चाहूंगी मैं, दिस इज नॉट सेक्शन 2D,
दिस इज सेक्शन 2P। कोई गलती नहीं करेगा, फिर मत कहना हिमाद्री ने नहीं बताया, हिमाद्री ने बताया था। इट्स 2P। ओके 2P। लेट्स सी इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है भाई। Industry means any systematic activity carried on by the cooperation between an employer and a worker, whether such employer is employed by such employer directly or through any agency, including a contractor. Contractor से भी उसको आप employ कर सकते हैं. Okay. For the production, supply or distribution of goods or services with a view to satisfy human wants and wishes, not being wants or wishes which are merely spiritual and religious, whether or not any capital has been invested for the purposes of carrying on such activity, and such activity is carried on with a motive to make any gain or profit. Does not include institutions owned or managed by organization wholly or substantially engaged in charitable or social or philanthropic services. Any activity of the appropriate government relating to the sovereign functions of the appropriate government. Sovereign functions. Okay, point to be noted, my lord. Sovereign function of the appropriate government include all the activities carried on by the Department of Central Government dealing with defense research, atomic energy, space, any domestic service, any other activity as may be notified. Let's see. Okay, let's simplize. Let's learn. सबसे पहला पॉइंट, इंडस्ट्री क्या है? कोई भी ऐसी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो कोऑपरेशन से चल रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के। क्यों? ताकि प्रोड्यूस कर पाए, सप्लाई कर पाए या डिस्ट्रीब्यूट कर पाए कोई भी गुड्स या सर्विसेज। मूविंग ऑन, प्राइमरी रीजन क्या है इसका? इंडस्ट्री which provides certain rights and protections to workers, those related to retrenchment, layoff and dispute resolution. Self explanatory. Exceptions देखो भाई, ऐसी एक्टिविटीज जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए या फिर फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस है उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। कुछ गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो सोवरेन फंक्शंस करती हैं, सोवरेन फंक्शंस करती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी सोवरेन एक्टिविटीज होती है? क्या आप एक सर्कल बना सकते हैं और उसमें बोल सकते हैं कि ये 4, 5, 6 एंटिटीज हैं भैया, 7, 8 काम है जो सोवरेन काम है और उसके बाहर जो भी होगा वो सोवरेन काम नहीं है? इतना क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी हमारे पास इसको लेके। दैट इज वाई इसके ऊपर कई सवाल उठाए गए एंड वी आर गोइंग टू ट्रेस इट्स एवोल्यूशन। सोवरेन फंक्शंस लाइक डिफेंस, रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डोमेस्टिक सर्विसेज। सबसे पहला केस इसके अंदर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली versus Ramnath. We're gonna change our pen. Let's go with purple. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ। इस केस में क्या हुआ था, ध्यान से सुनो, बड़ी बढ़िया कहानी है। इस केस में हुआ था कि एक अपने बस ड्राइवर थे और एक लैबोरेटरी असिस्टेंट था, दोनों को काम से निकाल दिया था। ठीक है, बोथ ऑफ देम वर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर सर्विसेज। ये लोग इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास गए और उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक इंडस्ट्री है और वो उस इंडस्ट्री के वर्कमैन है, इसकी वजह से उनका जो टर्मिनेशन है वो इस एक्ट के अंदर और इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनिवर्सिटी एक इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसका प्राइमरी फंक्शन इज टू इम्पार्ट एजुकेशन, जो एक नोबल और सोवरेन फंक्शन है। तो इन्होंने एजुकेशन को इम्पार्ट करना भी एक सोवरेन फंक्शन बता दिया यहाँ पे। और स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप होता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के जैसा नहीं होता, इस वजह से यूनिवर्सिटी को हम एक इंडस्ट्री नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो पूरी जजमेंट थी, इट वाज criticized for being very narrow in its interpretation of an industry, which is effectively excluding all educational institution from the purview of Industrial Disputes Act. Okay? इसके बाद, क्योंकि इस नैरो इंटरप्रिटेशन के बाद एक और जजमेंट का आना बहुत जरूरी था, which was the Bangalore Water Supply Sewage Board versus A. Rajappa. एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एग्जाम में सवाल पूछा और मुझे सिर्फ बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड याद आ रहा था, मुझे बगल वाली पार्टी याद ही नहीं आई। सो प्लीज इसको याद करके चले जाना, इंपॉर्टेंट केस है। वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहला तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया। BWSSB के बीच में और उसके एम्प्लॉयज के बीच में एक डिस्प्यूट अराइव हुआ
और दे वर फाइंड फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है। बैंगलोर वाटर सप्लाई और सीवेज बोर्ड ने बोला कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करती है, इस वजह से वो इंडस्ट्री नहीं कहलाई जाएंगी। इसका जजमेंट ध्यान से सुनो, इसका जजमेंट, ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसके जजमेंट में एक ट्रिपल टेस्ट आया। उस ट्रिपल टेस्ट के हिसाब से कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है जो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी करवा रही है, जो कि कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की वजह से हो रहा है, एंड जिसकी वजह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं, तो वो एक इंडस्ट्री कहलाई जाएगी। एडिशनल प्रिंसिपल्स, सबसे पहला डोमिनेंट टेस्ट नेचर। अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सोवरन और नॉन सोवरन एक्टिविटीज दोनों देखने को मिलती है, तो हम ये बोलेंगे कि जो भी उसका डोमिनेंट नेचर है, जो भी उसका प्राइमरी नेचर है, वही डिटरमाइन करेगा कि वो इंडस्ट्री है या नहीं है। प्रॉफिट मोटिव इज इररेलेवेंट। अगर वो प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है, उससे उसका इंडस्ट्री होने का या ना होने का कोई रिलेशन नहीं है। It can not make any profit and be called an industry at the same time. Okay. Impact. Broad interpretation था public utility services, hospitals और educational institutes and even some charitable organizations को भी industry के scope में ले आए थे. Now, there is one case जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है but करना बहुत जरूरी है. उस केस का नाम है ये सुंदरम्बल वर्सेस गोवा। ध्यान से सुनो इस केस में क्या हुआ था। 3 केसेस आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। 3 केसेस आप लोगों को लिखने हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ, ठीक है, बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस सीवेज बोर्ड एंड सुंदरम्बल वर्सेस द स्टेट ऑफ गोवा। क्या हुआ था सुंदरम्बल में? सुंदरम्बल में बेसिकली देयर वाज अ प्रोफेसर हु वाज चैलेंजिंग दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बी कॉल्ड एन इंडस्ट्री और नॉट। ये सवाल था कोर्ट के आगे। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ के डिसीजन को उल्टा करते हुए बोला कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीचर्स होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको हम एम्प्लॉय नहीं बोल सकते। दे कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय एंड फॉर देम सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी एन इंडस्ट्री। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? टीचर्स के लिए टीचर्स एम्प्लॉय नहीं हो सकते और उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी सारे पियोन्स होते हैं, ठीक है, जितने सारे पियोन्स होते हैं या लैब असिस्टेंट्स होते हैं या बस ड्राइवर्स होते हैं, उन सब के लिए दे आर एम्प्लॉयर्स, दे आर एम्प्लॉयज एंड फॉर देम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी कॉल्ड एन इंडस्ट्री। ठीक है, that was A. Sundarambal versus the state of Goa. Okay, moving forward. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? अभी छोटी छोटी डेफिनेशंस बची हैं, फटाफट इसको हम खत्म कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं बची हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2 क्लॉज Q। Industrial dispute. Industrial dispute means any dispute or difference between employers and employees or between employers and workers or between workers and workers which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labor of any person and includes any dispute or difference between an individual worker and employer connected with or arising out of discharge, dismissal, retrenchment and termination. बाप रे बाप, एक लगा लेते हैं कि पढ़ लिया है। साफ स्पष्ट शब्दों में बोल जाए, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, सबसे पहला एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, दूसरा एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, तीसरा वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट या फिर टर्म्स और कंडीशंस और ऑफ लेबर से रिलेटेड है, तो फिर उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, लेऑफ्स, ट्रांसफर, क्लोजर, वेज डिस्प्यूट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सर्टिफाइंग ऑफिसर, सेक्शन 2 क्लॉज G।
Certifying officer means any officer appointed by the appropriate government by notification to perform the functions of certifying officer. आओ दोस्तों, सर्टिफाइंग ऑफिसर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो अपॉइंट किया गया है टू सर्टिफाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स. स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऐसे रूल्स होते हैं जो एम्प्लॉयर ड्राफ्ट करता है और सर्टिफाइंग ऑफिसर अप्रूव करता है, जो 6 महीने तक वैलिड रहते हैं. तो ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट जो एम्प्लॉय किया गया है या अपॉइंट किया गया है स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करने के लिए फॉर एस्टैब्लिशमेंट, ऑल्सो टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ सर्टिफाइंग ऑफिसर मेंशन्ड अंडर चैप्टर 4. उसका फंक्शन होता है कि वो क्लैरिटी इंश्योर करेगा, फेयरनेस, कंसिस्टेंसी इन द रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 2ZJ. स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स ऑर्डर रिलेटेड टू मैटर्स सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल. ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जिनका मैटर्स फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है. टू गेन मोर क्लैरिटी, written rules which details the terms and conditions of employment for an industrial establishment. कंडक्ट क्या होगा, डिसिप्लिन, लीव, वेज, टर्मिनेशन, प्रोसीजर एटसेट्रा. स्केड्यूल क्या है? स्केड्यूल 1 स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करता है, 2 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की बात करता है और 3 कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर चेंज की बात करता है. एम्बिग्विटी एंड डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट करना इसका मकसद है, इसका ऑब्जेक्टिव है. ट्रेड यूनियन एंड द लास्ट definition for today, section 2ZL. Trade union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purposes of regulating the relation between worker and employers, or between workers and workers, or between employers and employees, for imposing restrictive conditions on the conduct of trade or business, includes any federation of 2 or more trade unions. Agreement between parties as to their own businesses, agreement between employer as to those employed by him, and agreement in consideration of the sale of the goodwill of business or instruction. It's not as complicated as it sounds. It's very simple. कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो कलेक्टिव बार्गेनिंग और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट को करने के लिए के ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अंदर आ गया है, वो पहले बोलता था कि ट्रेड यूनियन का रजिस्टर होना ऑप्शनल है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के आ जाने के बाद से इट्स कंपल्सरी. ओके, इट इज मैंडेटरी. ग्रांटेड स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी, ट्रेड यूनियन के कारण उनको स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस फॉर एक्शन इन कॉन्टेम्प्लेशन एंड फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट. Powerful unions accord negotiating privileges formed for dispute handling. I mean, it's self-explanatory. Registrar responsible for registration and oversight, and membership fees, general fund और political fund. ये 2 केसेस हैं जो अगर आप बहुत डिलीजेंट बच्चे हो तो पढ़ लेना, मैंने पढ़े थे. They are very interesting and they're going to help you fetch more marks. Workers of Democracy, Tea Estate versus Management, and Jahangir and Modi versus Shamji Lada. This is already going to be a 20-minute वीडियो, तो इसमें मैं बाइपोटाइट फोरम अभी नहीं करूंगी, पर इन द इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो बाइपोटाइट फोरम आप लोगों के लिए आने वाली है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट. मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, बट प्लीज डू इट. बाय बाय. सी यू टिल नेक्स्ट टाइम.